Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine. Today I am going to start our unit number 2, Computer Security Threat, lesson number 6. In this lesson we will discuss the following contents: introduction, computer security threats, virus, worms, adware, hackers. Introduction. Security is very important to run any organization successfully. It protects from unintended or unauthorized access, change or distortion. It provides protections against different types of computer security threats. The user must aware against these security threats. In this unit, different security threats and their remedy will be discussed. Number 1, computer security threats. In computer security, a threat is possible danger, loss or crime, may cause possible harm. Threat may damage your valuable data, or it can slow down your computer or network. Threats are normally spread by opening unknown email attachment, visiting insecure website, or using infected USB flash drive or CDs. Security is the protections against these threats. There are many types of computer security threat in the world. A few computer security threats are discussed below. Virus. The most common type of security threat is computer virus. A computer virus is a small program that inserts and replicates itself in the computer without your knowledge and takes over the control of the computer system. Computer viruses are usually man-made. Depending on the nature of a virus, it may cause damage your data or interfere in the normal operations of your computer. It may format your hard disk or may reduce computer memory or disk space. It may corrupt your software or may display some false message on the screen. Worms. Computer worm is small piece of software. There is a difference between computer virus and worm. A computer virus needs a host program to run, while computer worms can run itself. It doesn't need to attach itself to the existing programs. Email worms, internet worms, instant messaging worms are the few examples of computer worms. Adware. Adware is a program which delivers ads to your computer while web surfing. These ads are advertising banners are displayed automatically in the browser window. Adware itself is harmless but can slow down your computer. Hackers. In the most familiar sense, hacker is an evil genius computer programmer. Hackers gain unauthorized access to other computer systems for the purpose of stealing and corrupting data. Hackers have good programming skill and full understanding for the internet working of the computer system and networking. Some hackers hack password to break into the system, while others hack the system just for exploitation and embarrassment. Explanation next slides में इंशाल्लाह हम देखते हैं. Okay. First of all, here we see introduction. Security is very important to run an organization successfully. It protects from unauthorized access. It protects security from different types of threats. Security basically होती क्या है? जैसे अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स लें, ठीक है, तो आप स्कूल्स के बाहर या घरों के बाहर आप देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है. तो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का पर्पस क्या होता है? वो किसी भी बाहर से आने वाले मतलब किसी भी डेंजर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उस स्पेसिफिक प्लेस को, या कोई स्कूल है, कोई घर है. आजकल आप देखते हैं जैसे सिक्योरिटी के लिए लोगों ने घरों के बाहर सीसीटीवी लगाए हुए हैं, ठीक है. तो उसका फंक्शनैलिटी क्या है? वो सिक्योर करता है घर को ताकि किसी भी हार्मफुल थिंग से, किसी भी डेंजरस थिंग से बचा जा सके. तो इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है. यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है. इसके लिए सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. आपको पता है आपके सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट डेटा होता है, तो डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, डेटा को लॉस्ट होने से बचाने के लिए, डेटा को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, डेटा को करप्ट होने से बचाने के लिए हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका बेसिक जो फंक्शन होता है कोड, उसके लिए ज़रूरी होती है सिक्योरिटी, ठीक है.
तो हमारे पास यहाँ पे भी सिक्योरिटी का बेसिकली पर्पस ये है कि हम अपने कंप्यूटर को किसी भी हार्मफुल चीज़ से, किसी भी थ्रेट से बचा सके। अब हम आगे देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना चाहते हैं। तो यू कैन सी हियर थ्रेट्स। अ थ्रेट इज अ पॉसिबल डेंजर, लॉस और क्राइम मे कॉजेज अ पॉसिबल हार्म। तो ये वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, जो हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को डैमेज कर सकती है, ठीक है, जो हमारे डेटा फाइल्स को डैमेज कर सकती है। तो बेसिकली इट इज़ अ रिस्क दैट कैन पोटेंशियली हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पोटेंशियली हमारे सिस्टम को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है या फिर उसको स्लो डाउन करती है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की थ्रेट्स होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक नॉन फिजिकल होता है। फिजिकल ये होता है कि जब आपके कंप्यूटर को कोई चुरा ले, ठीक है, तो जब वो आपका लैपटॉप, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फोन है, किसी ने चुरा लिया तो आपका डेटा वो चोरी हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरी टाइप की नॉन फिजिकल है। नॉन फिजिकल जो होती है वो वायरस अटैक होती है। वायरस क्या होते हैं, कोई भी प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन करते हैं, जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रॉम्प्ट्स होते हैं। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, डैमेज वैल्यूएबल डेटा, स्लो डाउन योर कंप्यूटर। बेसिक जो इसका नुकसान होता है किसी थ्रेड्स का, ये हमारे कंप्यूटर को एक तो स्लो डाउन करता है, एक हमारे डेटा को करप्ट कर देता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यू कैन सी इन द स्लाइड, 4 टाइप्स गिवन है, वायरस, वॉर्म्स, एडवेयर, हैकर्स। ये क्या है, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे डेटा को लॉस्ट कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी को वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी इन द पिक्चर, ये आपके पास वायरस की पिक्चर दी हुई है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। अब वन बाय वन इसके बारे में डीपली देखते हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे हमारे कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह है। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास वायरस है। इट इज स्मॉल कंप्यूटर प्रॉम दैट इंसर्ट एंड रिप्लिकेट इटसेल्फ इन द कंप्यूटर विदाउट यूजर नॉलेज एंड टेक ओवर द कंट्रोल टू द ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब वायरस क्या है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। ये एक प्रॉम हो सकता है जो कि आपके कंप्यूटर में एंटर होता है और आपके कंप्यूटर क्या करता है, उसको डेटा स्टेल करता है, डेटा करप्ट करता है, ठीक है। अब वायरस जो होता है, वायरस जब आपके कंप्यूटर में एंटर होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जिससे क्या नुकसान होता है कि आपकी मेमोरी वेस्ट होती है, एक ही फाइल नंबर ऑफ कॉपीज में हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर का कंट्रोल जो होता है वो अपने अंडर ले लेता है और अपनी मर्जी से आप कर कुछ और रहे होते हो, कोई और फाइल ओपन हो रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को स्लो भी करता है, हमारे कंप्यूटर के डेटा को करप्ट भी करता है, हमारी बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल्स बना देता है, ठीक है, जिससे हमारी मेमोरी वेस्ट होती है और ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये जो वायरस है, इन वायरस से और इन थ्रेट से कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वो फिर इंशाल्लाह साथ आगे देखेंगे कि वो सिक्योरिटी कैसे हम इनको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ malicious सॉफ्टवेयर रिटन intentionally टू एंटर अ कंप्यूटर विदाउट टू यूजर परमिशन और नॉलेज, ठीक है। ये क्या होता है, ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर के परमिशन के बगैर आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है, ठीक है, और खुद को रिप्लिकेट करता है और बहुत सारी अपनी कॉपीज बना देता है। बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास वायरस की, जिसमें एक बूट वायरस होता है, लॉजिक बम और टाइम बम, ये इंशाल्लाह आप अगली उसमें देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इतना ही है कि हमें पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है थ्रेड्स की, वॉर्म्स।
It is small piece of software that uses computer network to replicate itself. It spread from computer to computer without any human action. अब ये जो हमारे पास swarm होता है ये थ्रू नेटवर्क क्या होता है, ये स्प्रेड करता है, ठीक है, ये भी वही काम करता है, ये भी कंप्यूटर के थ्रू नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर रिप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और क्या करता है ये कंप्यूटर, जैसे अगर आपके पास एक यूएसबी है, एक इन्फेक्टेड यूएसबी है, आपने उसको लगाया किसी भी दूसरी कंप्यूटर के साथ, तो क्या होता है आपके वायरस जो कंप्यूटर होता है यूएसबी के साथ वायरस ऑटोमेटिकली दूसरी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। या अगर आप क्या करते हो, किसी को मेल करते हो और मेल में जो वायरस होता है वो ऑटोमेटिकली जब वो अगला बंदा जो है वो फाइल ओपन करेगा तो उसके कंप्यूटर में एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थ्रेट है जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है। बेसिक डिफरेंस हमारे पास वायरस और वर्म्स का क्या है कि ये जो होता है हमारे पास वायरस होता है ये डिपेंडेंट होता है, यानी इसके लिए एक होस्ट फाइल जरूरत होती है या कोई बूट सेक्टर, और ये ट्रांसफर करता है फाइल्स को कंप्यूटर, ठीक है, टू कंप्यूटर। जबकि हमारे पास वर्म क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली और स्प्रेड करता है इट्स ओन अकॉर्ड थ्रू नेटवर्क कनेक्शन, और ये नेटवर्क के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है। जबकि वायरस को हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है और उसके लिए हमें होस्ट फाइल की जरूरत होती है। जैसे ही आप यूएसबी लगाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी उसमें कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपके सिस्टम्स को स्लो डाउन करेगा, आपकी फाइल्स को करप्ट करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से हम प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। गॉट इट? Okay, it doesn't need to attach itself to the existing form. Examples इसके क्या क्या है, ईमेल वॉर्म्स, इंटरनेट वॉर्म्स और इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म। इंस्टेंट मैसेजिंग कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास ऑनलाइन मैसेज होते हैं, जैसे आप एप्स यूज करते हो, ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं दो पार्टीज के दरमियान, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, वाइबर है, लाइन है, वी चैट एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। और इसके थ्रू क्या होता है, ये जो स्प्रेड होता है थ्रेड वो क्या होता है, वर्म्स होता है। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है एडवेयर। इट इज अ प्रोम which deliver ads to your computer while web surfing. It is harmless itself but slow down your computer. अब हमारे पास जो एडवेयर है ये हमारे पास एक्चुअली क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती हैं, एड्स होते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन जब भी आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली साथ में जो एड्स शो हो रहे होते हैं वो हमारे पास एडवेयर होते हैं। अगर आप उनको क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपके कंप्यूटर में इस टाइप का जो थ्रेड है वो एंटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है कि इट इज हार्मलेस इटसेल्फ बट स्लो डाउन योर, तो डेफिनेटली जब आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली एंटर होंगे तो मेमोरी वेस्ट होगी, मेमोरी ज़्यादा यूज्ड होगी और आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जब भी जैसे आप अगर कोई भी प्ले स्टोर यूज कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये कोई भी आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास साथ में कोई एडवर्टाइजिंग आ रही होती है, कुछ एड्स आ रहे होते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वो सारे किसकी टाइप है, एडवेयर की टाइप है, जो कि एंटर करने पे या क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हैकर्स। अब हैकर्स क्या है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि हैकर्स क्या है, ये एक पर्सन होता है। इट इज एन इविल जीनियस कंप्यूटर प्रोग्रामर। इट गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ स्टीलिंग एंड करप्टिंग डेटा। इट ब्रेक पासवर्ड टू एंटर इनटू द सिस्टम। इससे पहले हमने जितने भी देखे हैं, वायरस देखा है, वॉर्म देखा है, एडवेयर देखा है, वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, सेट ऑफ कोड है। जबकि हमारे पास हैकर क्या है, ये एक ऐसा पर्सन है या एक ऐसा प्रोग्रामर है जो आपके थ्रू प्रोग्रामिंग आपके डेटा को एक्सेस करता है अनऑथराइज्ड तरीके से, या आपके सिस्टम में एंटर होता है और आपका डेटा वो है वो चोरी करता है।
अब ये क्या करता है, अब एक टाइप की हैकिंग ये भी होती है कि इट ब्रेक पासवर्ड टू एंटर इन द सिस्टम। अब एक सिंपल एग्जांपल, इट इज़ नॉट रियली हैकिंग बट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। घर में सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई भाई है, ठीक है, उसने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया। अब आप क्या करते हो, वो आपको यूज़ नहीं करने देता, तो आप क्या करते हो, आप उसका पासवर्ड चोरी, जब वो टाइप कर रहे होते तो आप उसको अपने माइंड में फिट कर लेते हो, ठीक है, और उसके जाने के बाद या नहीं तो आप उसको यूज़ कर लेते हो। एक एग्जांपल है, ठीक है, इट्स नॉट रियल। तो वो भी एक टाइप की क्या होती है, हैकिंग होती है, पासवर्ड हैकिंग होती है कि आप किसी का पासवर्ड चोरी करते हो और फिर आप उसको अपने लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर नहीं होता बल्कि एक ये पर्सन होता है जो आपके कंप्यूटर डेटा को एक्सेस करता है अनऑथराइज्ड वे से। नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास होमवर्क गिवन है, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन लिखनी है। नंबर 2, डिफाइन कंप्यूटर थ्रेट्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट। आपने ये अपनी नोटबुक्स पे करना है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ है। आपने प्रॉपर यूनिट नंबर 2 की हेडिंग देनी है, यूनिट नंबर 2 का नाम लिखना है और उसके बाद फिर आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।